Good morning, students. Welcome in the next class of statistics. Today, we will discuss the second chapter of your book. The name of this chapter is The Collection of Data. But as you know that, it is the first stage of statistics, meaning firstly we have to collect the data. After that, we organize that data, analyze that data. मीनिंग बेटा किसी भी स्टैटिस्टिकल प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हमें जो है डाटा को कलेक्ट करना पड़ता है। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये आज हमारा टॉपिक रहेगा कि हाउ वी कैन कलेक्ट द डाटा, which method we should use for the purpose of collecting the data, and what's the meaning of data, types of data. These all are the topic for today class. Understand beta? Let's start with the first slide. Yes beta. Firstly, why do we collect the data? Why we require the data? Firstly, you have to know about the meaning of data. ये data है क्या चीज? But we can say that data is any information which an investigator can take from the respondent, take from the informants. That is called the data. हर वो information जो एक इन्वेस्टिगेटर किसी भी रिस्पोंडेंट से या इन्फॉर्मेंट से लेता है, the all information are called the data. Suppose that आपसे पूछा जाए what's your name, what's your father name, आपका विलेज कौन सा है, आप जो है आपकी एज कितनी है, आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए हैं, आपकी हाइट कितनी है, आपका वेट क्या होता है, कितना है, these all the informations are data which relate with you. Understand beta? So why we collect the data? Why a investigator collect the data? How the data is useful in the statistics. तो बेटा यहाँ पे आपको समझना है कि the purpose of data collection is to understand, analyze and explain a socio-economic problem. कोई भी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसको समझने के लिए, उसको एनालाइज करने के लिए और उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डाटा की रिक्वायरमेंट होती है. दैट इज द नीड ऑफ डाटा. दैट्स व्हाई वी कलेक्ट द डाटा. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी mainly two things या two concept. First one, the sources of data. हम कहां से डाटा कलेक्ट करेंगे, कौन से सोर्सेज हो सकते हैं, एंड द मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग द डाटा. हम किस किस मेथड से डाटा को कलेक्ट कर सकते हैं. तो देखिए बेटा, सबसे पहले व्हाट्स आर द सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन. डाटा को कलेक्ट कैसे कैसे किया जा सकता है, कौन से सोर्सेज जो है फॉर द पर्पज ऑफ कलेक्टिंग द डाटा वी कैन यूज. तो बेटा वी कैन कलेक्ट द डाटा मेनली टू सोर्सेज. First one is the primary source and another one is the secondary source. And beta, the data collected from the primary source is called the primary data and the data collected from the secondary source is called the secondary data. So beta, firstly, what's the meaning of primary data? When we collect the data, when a investigator collect the data from its source of origin. What's the meaning of source of origin? What is source of origin? ये source of origin क्या है? Meaning beta, when a investigator directly collect the data from the informants, from the respondents, that is the source of origin. Meaning suppose that आपका डाटा कलेक्ट करना है तो आप सोर्स ऑफ ओरिजिन है. जब कोई इन्वेस्टिगेटर डायरेक्ट जो है आपसे इंफॉर्मेशन लेता है तो दैट इज द कलेक्शन ऑफ डाटा फ्रॉम द प्राइमरी सोर्सेस. अंडरस्टैंड बेटा? The next one is it offers you first-hand quantitative information. The primary data provide the first-hand quantitative information. इसके थ्रू जो इंफॉर्मेशन होती है वो प्राइमरी इंफॉर्मेशन होती है. वो मीनिंग जो है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन होती है, वो किसी और की यूज्ड इंफॉर्मेशन नहीं होती. अंडरस्टैंड बेटा? The next one is the primary data, the data collect from the primary source is called the primary data. Understand beta? And then what's the meaning of secondary data? When any investigator use the already collected data, that is the secondary data. Meaning when data are collected by other person and used by other person. कलेक्ट किसी और ने किया था और यूज उसको कोई और कर रहा है, दैट इज द सेकेंडरी डाटा.
सपोज दैट बेटा यू वांट टू डू एनी स्टैटिस्टिकल स्टडी फ्रॉम योर विलेज, अगर आप अपने विलेज के अंदर से खुद जाके डाटा कलेक्ट करते हैं तो दैट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, और वो आपका प्राइमरी डाटा होगा। बट अगर आप जो है गांव के सरपंच ने ऑलरेडी वो डाटा कलेक्ट किया हुआ था, आपने सरपंच से विद रिक्वेस्ट वो डाटा जो है ले लिया, तो दैट इज द सेकेंडरी सोर्स ऑफ डाटा, दैट इज द सेकेंडरी डाटा। Meaning beta, when the data, when the collection of data from some agency or institution which already collected the data through the statistical survey, meaning जो data already collect हो चुका है, हमने उस data को use कर लिया, तो that is the secondary sources of data. और it doesn't offer you the first hand information, क्योंकि ये डाटा किसी और ने कलेक्ट किया था, इसलिए आप तक जो डाटा आएगा उसको हम सेकंड हैंड डाटा या सेकंड हैंड इंफॉर्मेशन कहेंगे। इट्स नॉट ए फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन। और जो बेटा जो सेकेंडरी सोर्सेज से डाटा कलेक्ट होता है उस डाटा को हम सेकेंडरी डाटा कहते हैं। अंडरस्टैंड बेटा, व्हाट्स आर द सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। नेक्स्ट, व्हाट्स द प्रिंसिपल डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डाटा, इनके बीच में डिफरेंसेस क्या हैं? तो मेनली बेटा तीन यहां पे डिफरेंस रहेंगे। फर्स्ट, द डिफरेंस इन ओरिजिनलिटी, एज यू नो दैट बेटा जो आपका प्राइमरी डाटा होता है वो आपका फर्स्ट हैंड डाटा होता है, दैट्स व्हाई इट्स ओरिजिनल। But the secondary data is provide the second hand information, that's why it is not a original data, क्योंकि ये किसी और ने कलेक्ट किया था, उसका पर्पज ऑफ स्टडी कुछ और हो सकता है, उसका मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा कैन बी डिफरेंट। तो इसलिए बेटा जो आपका सेकेंडरी डाटा है वो ओरिजिनल डाटा नहीं होता। द नेक्स्ट इज द डिफरेंस इन ऑब्जेक्टिव। बेटा अगर हमें कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, स्पेसिफिक स्टडी करनी है, हमें कोई डीपली इन्वेस्टिगेशन करना है, देन वी हैव टू यूज द प्राइमरी सोर्स ऑफ डाटा, तब हमें प्राइमरी डाटा यूज करना चाहिए। लेकिन इफ आवर ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी इज जर्नल, कोई जर्नल सा टाइप है, हमें कोई डीपली इन्वेस्टिगेशन नहीं करना, देन वी कैन यूज द सेकेंडरी डाटा, जहां पे मिस्टेक की पॉसिबिलिटीज भी हो सकती है, जहां पे अगर डाटा ज्यादा एक्यूरेट नहीं भी है, अगर वो डाटा भी चल सकता है तो वी कैन यूज द सेकेंडरी डाटा। लेकिन अगर हमें डीपली इन्वेस्टिगेट करना है देन वी शुड यूज द प्राइमरी डाटा। तो बेटा हम कह सकते हैं प्राइमरी डाटा इज यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव एंड द सेकेंडरी डाटा इज यूज्ड फॉर द जनरल ऑब्जेक्टिव। अंडरस्टैंड बेटा। द नेक्स्ट वन इज द डिफरेंस इन कॉस्ट ऑफ कलेक्शन। बेटा प्राइमरी डाटा जो है इन्वेस्टिगेटर खुद जाके कलेक्ट करता है, दैट्स व्हाई व्हेन इन्वेस्टिगेटर कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द प्राइमरी सोर्स, तो उसका टाइम भी लगता है, उसके मनी भी लगती है और उसका एफर्ट्स भी लगता है। बट सेकेंडरी डाटा के अंदर ना टाइम लगता है, ना मनी लगती है, ना ही एफर्ट्स लगते हैं। इसके अंदर तो केवल उसको किसी पर्सन से रिक्वेस्ट करके डाटा कॉपी करना है, उसकी जीरोक्स कॉपी करवानी है, उसकी सॉफ्ट कॉपी जो है अपने कंप्यूटर के अंदर वो कॉपी कर सकता है। मीनिंग बेटा अगर हम बात करें द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, तो हम कहेंगे प्राइमरी डाटा इज ए कॉस्टली सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, बट द सेकेंडरी डाटा इज ए चीप सोर्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा। Understand beta? So these are mainly three difference between the primary and secondary data on the basis of originality, on the basis of objective and on the basis of cost of collection। हमने ये तीनों differences यहाँ पे देखे हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, नोट द फॉलोइंग। आपको तीन कंसेप्ट यहाँ पे समझने पड़ेंगे, बार बार ये तीन वर्ड मैं यूज करूंगा तो इसलिए इन तीनों वर्ड्स का आपको मीनिंग पता होना चाहिए। द फर्स्ट वन जो मैं बहुत बार यूज कर चुका हूं, इन्वेस्टिगेटर। हु इज इन्वेस्टिगेटर? The second one is enumerator. Who is enumerator? The last is respondent. तो ये तीन वर्ड जो है बेटा इस वीडियो के अंदर या इस चैप्टर की आगे भी या स्टैटिस्टिक्स के अंदर बार बार यूज होंगे। That's why you have to know about these three words. First one is the investigator. Investigator is a person who plans and conduct an investigation independently or with the help of others. Meaning क्या है बेटा? Investigator वो person है who want to investigate, who want to do the statistical study or survey, that person is investigator. Suppose that बेटा मेरे को कोई investigation करना है, मेरे को कोई सर्वे करना है, तो I am the investigator. अब वो सर्वे मैं खुद भी कर सकता हूं, मैं किसी की हेल्प से भी कर सकता हूं। नेक्स्ट इज enumerator. Who is enumerator? ये कौन है? Enumerator is a person who actually collects the data from the for investigator. Suppose that बेटा I want to do the investigation for whole हरियाणा, मेरे को पूरे हरियाणा का इन्वेस्टिगेशन करना है, तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, आई कैन कलेक्ट द डाटा फॉर होल स्टेट, ये मैं नहीं कर सकता।
तो मैं क्या करता हूं, किसी की हेल्प लेता हूं। सपोज दैट मैं हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर अपना एक मीनिंग कह सकता हूं रिप्रेजेंटेटिव आगे अपॉइंट कर देता हूं, तो वो रिप्रेजेंटेटिव मेरे लिए डाटा कलेक्ट करता है, उसको क्या कहा जाएगा, इनमोरेटर। मीनिंग इनमोरेटर इज ए पर्सन हु कलेक्ट्स द डाटा फॉर इन्वेस्टिगेटर, जो इन्वेस्टिगेटर के लिए डाटा कलेक्ट करता है। और यूजुअली बेटा इन जो आपका इनमोरेटर है, इट इज ये एक हायर्ड पर्सन होता है जिसको हम इन्वेस्टिगेटर हायर कर सकता है। ये थोड़ा एक्सपर्ट होता है जो डाटा अच्छे से कलेक्ट कर सकता है। द लास्ट वन इज द रिस्पोंडेंट्स। रिस्पोंडेंट इज ए पर्सन फ्रॉम हुज द डाटा विल कलेक्ट, जिससे डाटा कलेक्ट किया जाएगा, जिसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना है। Meaning, respondent is a person who answer या responds to the set of question included in the questionnaire. Questionnaire होता है बेटा set of question, हम आगे स्लाइड्स में देखेंगे इस questionnaire क्या होता है। मतलब respondent वो person है जो आंसर करेगा, जो जवाब देगा, जिसके से हमें डाटा कलेक्ट करना है। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये 3 वर्ड आपको ध्यान रखने हैं। रिस्पोंडेंट्स को बहुत बार इन्फॉर्मेंट्स भी कहा जा सकता है, जो इंफॉर्मेशन देता है। अंडरस्टैंड बेटा? तो ये तीनों पॉइंट्स आपको नोट करने हैं। The next is the methods of data collection. बेटा यहां पे डाटा कलेक्शंस के 3 मेथड्स हो सकते हैं। ये तीनों ही मैंने ABC इनको नंबरिंग दी हुई है, ठीक है। और आगे इन तीनों मेथड्स के आगे डिफरेंट मेथड हो सकते हैं। लाइक हम बात करते हैं पर्सनल इंटरव्यू। नेक्स्ट जो हमारा मेथड होता है उसको हम क्वेश्चनेयर मेथड कह सकते हैं। और थर्ड जो होता है टेलीफोनिकली सर्वे होता है। तो यहां पे बेटा सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं द पर्सनल इंटरव्यूज। How we can collect the data with the help, or how a investigator can collect the data through the personal interviews. तो यहाँ पे बेटा 3 मेथड मेनली यूज होते हैं। द फर्स्ट वन इज डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। Direct personal investigation. In this method, data are personally collected by the investigator from the respondent. देखिए बेटा investigator और respondent दोनों वर्ड यहाँ पे यूज हुए हैं, तो ध्यान रखना है बेटा। In this method, investigator create या physically contact with the respondent and collect the data directly from the respondent. ठीक है जी। मीनिंग इन दिस मेथड डाटा आर पर्सनली कलेक्टेड बाय द इन्वेस्टिगेटर फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। ठीक है जी। डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से एक इन्वेस्टिगेटर जो है डाटा कलेक्ट करता है। सुटेबिलिटी, कहां सुटेबल रहेगा, किस कहां पे हम इस मेथड को यूज कर सकते हैं। वेयर द लिमिटेड फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जहां पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन ज्यादा ना हो, मीनिंग इजिली वो सबसे एक डाटा कलेक्ट कर सकता हो। लेकिन बेटा अगर हम बात करें इन्वेस्टिगेटर वांट टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम होल स्टेट, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि वो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन कर ले, कि वो सबसे रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली जाके पर्सनली कांटेक्ट कर ले। ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो ये मेथड उस टाइम पे काम नहीं करेगा। लेकिन जहां पे फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन लिमिटेड होती है, सपोज दैट आई वांट टू कलेक्ट द डाटा फ्रॉम द +1 क्लास ऑफ गुरुकुल, वहां पे केवल 50 बच्चे हैं, मैं उनसे डाटा कलेक्ट कर सकता हूं। ठीक है। ओरिजिनलिटी रिक्वायर्ड, जहां पे डाटा हमें बिल्कुल ओरिजिनल चाहिए, हमें फर्स्ट हैंड डाटा चाहिए, तब भी हमें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज करना चाहिए। सीक्रेसी रिक्वायर्ड, अगर हमें डाटा को सीक्रेट रखना है, अगर डाटा को लीक नहीं होने देना है, डाटा पर्सनल है, देन वी शुड यूज द डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। और वेयर द डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द रिस्पोंडेंट इज रिक्वायर्ड, जहां पे हमें रिस्पोंडेंट से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करना जरूरी है, वहां पे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की कुछ मेरिट्स हो सकती हैं, कुछ डीमेरिट्स हो सकती हैं। मेरिट्स क्या क्या हैं बेटा? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से जो डाटा होता है वो बिल्कुल ओरिजिनल होता है, वो डाटा बिल्कुल क्वाइटली एक्यूरेट होता है। वी कैन इजिली बिलीव ऑन दैट डाटा, क्योंकि हमने उसको खुद कलेक्ट किया है, इसलिए वो डाटा रिलायबल होता है, हम उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी मिल जाएगी, मीनिंग सपोज दैट वी वांट टू कलेक्ट द डाटा रिगार्डिंग द डिजीज, हमें डिजीज से रिगार्डिंग को डाटा कलेक्ट करना है, हमें ये पता करना है कि पर्सन हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो हमें यही केवल क्वेश्चन पूछा कि आर यू हेल्दी और अनहेल्दी, उसने कहा आई एम नॉट हेल्दी, आई एम नॉट वेल, तो हम पूछ सकते हैं कि आपको डिजीज क्या है। तो वो डिजीज का भी हमें साथ में पता लग जाएगा। इट इज द रिलेटेड इंफॉर्मेशन। मतलब बेटा जब एक इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली कांटेक्ट करता है, तो उस टाइम पे वो इन्वेस्टिगेटर रिलेटेड इंफॉर्मेशन को भी ग्रैब कर सकता है।
यूनिफॉर्मिटी होती है बेटा आइडेंटिकल डाटा, एक जैसा डाटा। इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो डायरेक्टली सबसे मिलके एक जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है, इसलिए उसको यूनिफॉर्म इंफॉर्मेशन मिलती है, एक जैसी इंफॉर्मेशन मिलती है। एंड दिस मेथड इज इलास्टिक, मतलब यहां पे कहीं ना कहीं जो है क्वेश्चंस के अंदर चेंज किया जा सकता है। सपोज दैट बेटा कि कोई इन्वेस्टिगेटर ये पता करना चाहता है कि एक पर्टिकुलर लोकेलिटी के अंदर नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने हैं, तो वो सबके घर पे जाके पूछता है कि आपके घर पे कितने चिल्ड्रन हैं, तो वो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछता है कि आर यू मैरिड और नॉट। अगर कोई पर्सन ये कहता है आई एम नॉट मैरिड, तो वो चिल्ड्रन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा ही नहीं, मतलब अपने सेट ऑफ क्वेश्चन के अंदर वो कुछ चेंजेस कर सकता है। दैट्स व्हाई दिस मेथड इज इलास्टिक, जिसके अंदर चेंजेस पॉसिबल है। नेक्स्ट देयर आर सम डिमेरिट्स आल्सो, लाइक डिफिकल्ट टू कवर द वाइड एरियाज। अगर पूरे हरियाणा पूरे स्टेट का हमें डाटा कलेक्ट करना है तो इट्स नॉट पॉसिबल कि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से उसको कलेक्ट कर पाएं। पर्सनल बाइसनेस, जो एक बाइस्ड हो सकता है, यहाँ पे भेदभाव आ सकता है, मीनिंग जो इन्वेस्टिगेटर है वो हो सकता है कि केवल मेल से डाटा कलेक्ट कर ले, केवल फीमेल से डाटा कलेक्ट कर ले, तो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेटर जो है वो बाइस्ड हो सकता है। इट इज ए कॉस्टली मेथड, क्योंकि इस मेथड के अंदर टाइम भी ज्यादा लगता है, एफर्ट्स भी ज्यादा लगते हैं, और इसके अंदर जो है मनी भी ज्यादा लगती है। दैट्स व्हाई इट इज ए कॉस्टली मेथड। लिमिटेड कवरेज, मतलब वाइड एरिया को, बड़े एरिया को ये कवर नहीं कर पाएगा। दैट इज ऑल्सो ए डिमेरिट और लिमिटेशन ऑफ दिस डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ठीक है जी, तो ये आपको समझना है बेटा। पर्सनल इंटरव्यू के अंदर हमने देखा फर्स्ट मेथड जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। लेट्स गो फॉर द सेकंड मेथड। द नेक्स्ट मेथड इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। फर्स्ट मेथड क्या था बेटा पर्सनल इंटरव्यू के अंदर? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। यहां पे है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। And in this method, the investigator collect the data from the other persons who are expected to possess the necessary information. मीनिंग बेटा यहां पे रिस्पोंडेंट से, मतलब हमें जिसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, हम डायरेक्टली उससे क्वेश्चन नहीं पूछते, उससे डाटा इकट्ठा नहीं करते, हम उसके किसी फ्रेंड से, उसके किसी रिलेटिव से, उसके किसी वेल नोन पर्सन से जो उसको बड़े अच्छे तरीके से जानता है, हम उससे, इन्वेस्टिगेटर उससे डाटा कलेक्ट करता है। अंडरस्टैंड बेटा? तो इसके अंदर जो है यहां पे डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर डायरेक्टली रिस्पोंडेंट से क्वेश्चन ना करके रिस्पोंडेंट के किसी रिलेटिव से, किसी फ्रेंड से क्वेश्चन पूछता है, वहां से डाटा कलेक्ट करता है, और जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा उसको कहा जाता है विटनेस। क्या कहा जाता है बेटा? विटनेस। मैंने ब्लू वर्ड के अंदर लिखा हुआ है विटनेस। ठीक है, दीज अदर पर्संस आर नोन एज विटनेस, उसको विटनेस कहा जाता है। अंडरस्टैंड बेटा? तो यहां पे ध्यान रखना है कि इन दिस मेथड द डाटा कलेक्टेड बाय सम अदर पर्सन हु आर एक्सपेक्टेड टू पोजेसेस द नेसेसरी इंफॉर्मेशन ऑफ द रिस्पोंडेंट, जिसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, और अदर पर्सन जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं उसको कहा जाएगा विटनेस। अंडरस्टैंड बेटा? अब बात आती है जी ये मेथड कहां कहां सुटेबल रहेगा, कहां कहां इसको यूज किया जा सकता है। वेयर द फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज लार्ज, जहां पे इन्वेस्टिगेशन का फील्ड जो है कुछ लार्ज है, कंपैरेटिव हम कह सकते हैं कि कंपैरेटिवली जो है वो इन्वेस्टिगेशन का फील्ड जहां पे बड़ा होता है, वहां पे हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यूज नहीं कर सकते, हम वहां पे इनडायरेक्ट और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। वेयर द डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द रिस्पोंडेंट इज नॉट पॉसिबल। हम जो है सपोज दैट बेटा आपके ब्रदर का डाटा चाहिए, और आपका ब्रदर जो है वो मुंबई के अंदर रहता है और आप दिल्ली के अंदर रहते हैं, तो आप जो है अपने ब्रदर की इंफॉर्मेशन दिल्ली के अंदर ही दे सकते हैं, मुंबई जाना नहीं पड़ेगा। मीनिंग जहां पे रिस्पोंडेंट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट पॉसिबल ना हो, वहां पे भी इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन किया जा सकता है। The next is when the respondents are not capable of giving the information. जैसे बेटा आपकी पर कैपिटा इनकम आपकी फैमिली की पता करनी है, तो आपके फादर को सपोज दैट आपके फादर जो है वो लो एजुकेटेड है, ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, तो बेटा उनको पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट नहीं करनी आती, तो आप पर कैपिटा इनकम फाइंड आउट करके जो है इन्वेस्टिगेटर को बता देते हैं। मीनिंग जहां पे रिस्पोंडेंट्स आर नॉट एबल टू गिविंग द एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, जहां पे इंफॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स नेचर की है, वहां पे भी हम इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं।
द नेक्स्ट वन इज द कॉम्प्लेक्स इन्वेस्टिगेशन, जहां पे इन्वेस्टिगेशन कॉम्प्लेक्स होता है, सेट ऑफ क्वेश्चन जो होते हैं वो बड़े कॉम्प्लेक्स होते हैं, उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हो सकती है, मीनिंग विच इज नॉट इजिली अंडरस्टैंडेबल बाय द रिस्पोंडेंट, देन वी कैन यूज द इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। हम उसके किसी एजुकेटेड, उसके किसी एक्सपर्ट फ्रेंड से जो है ऐसे क्वेश्चन पूछ के इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। तो दैट इज सम पॉइंट्स विच शोज द सुटेबिलिटी ऑफ द इंडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है बेटा इसकी मेरिट्स एंड डीमेरिट्स क्या क्या रहेंगी। सबसे पहले वाइड कवरेज हो सकती है एज कंपेयर टू डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, उससे के कंपैरिजन में ज्यादा कवर किया जा सकता है। एक्सपेंसिव कम है क्योंकि सभी रिस्पोंडेंट के पास डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं करना पड़ता, इसलिए एफर्ट्स भी कम है, टाइम भी कम है और यहाँ पे मनी भी कम लगती है। एक्सपर्ट ओपिनियन बेटा, जर्नली जो विटनेस होता है वो एक एक्सपर्ट होता है, ठीक है, क्योंकि बेटा जब एक रिस्पोंडेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए कैपेबल नहीं होता तो हम उसके किसी एक्सपर्ट फ्रेंड से, उसके किसी एक्सपर्ट रिलेटिव से इंफॉर्मेशन लेते हैं, तो वो कुछ अपने ओपिनियन भी दे सकता है, वो कुछ नोशंस, कुछ सुझाव भी दे सकता है। फ्री फ्रॉम बायस, यहाँ पे बेटा हो सकता है जो इन्वेस्टिगेटर है वो बायसनेस, सॉरी जो रिस्पोंडेंट है वो अपने बारे में गलत इंफॉर्मेशन दे, लेकिन उसका रिलेटिव पर्सन जो है उसकी एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन देगा, इसलिए बायसनेस के चांसेस कुछ कम होते हैं। द नेक्स्ट वन, इट इज अ वेरी सिंपल मेथड, मतलब ज्यादा कॉन्टैक्ट इसके अंदर जो है रिस्पोंडेंट से नहीं करना पड़ता। जैसे हम बात करते हैं कि गाँव की इंफॉर्मेशन गाँव का सरपंच दे देता है, तो हमें सबके पास डायरेक्टली नहीं जाने पड़ेगा, गाँव का सरपंच जो है वो एग्जैक्टली ऑलमोस्ट सबकी इंफॉर्मेशन दे सकता है। अंडरस्टैंड बेटा, तो दीज आर सम मेरिट्स। नेक्स्ट है बेटा कुछ डिमेरिट्स भी इसकी है, जैसे लेस एक्यूरेट, क्योंकि एक रिस्पोंडेंट्स की इंफॉर्मेशन रिस्पोंडेंट बेटर तरीके से दे सकता है, लेकिन उसका रिलेटिव, उसका फ्रेंड हो सकता है वो इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन नहीं दे पाए। बाइस्ड, कई बार जो है आपका रिलेटिव, आपका फ्रेंड जो है आपके बारे में गलत इंफॉर्मेशन भी दे सकता है। नेक्स्ट इज डाउटफुल कंक्लूजन, क्योंकि बेटा डाटा जो है वो किसी रिलेटिव ने, किसी विटनेस ने बताया हुआ है, इसलिए हम उससे एग्जैक्टली एंड फेयरली कंक्लूजन फाइंड आउट नहीं कर सकते। अंडरस्टैंड बेटा, तो दीज आर सम मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। द नेक्स्ट एंड लास्ट मेथड जो हमारा पर्सनल इंटरव्यू का है, इट्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंट्स। समटाइम ए इन्वेस्टिगेटर अपॉइंट्स द लोकल पर्सन और कोरस्पोंडेंट्स इन द डिफरेंट एरियाज। जैसे बेटा बात करते हैं कि पूरे हरियाणा की मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरे स्टेट की मेरे को इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो मैं हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर, हर एक टाउन के अंदर, एक सिटी के अंदर अपना एक लोकल सोर्स या कोरस्पोंडेंट्स को अपॉइंट कर देता हूं, जो कंटिन्यूसली मेरे को डाटा फर्निश करता रहता है, सेंड करता रहता है। ये मेथड ऑलमोस्ट यूज करते हैं जैसे न्यूज चैनल वाले। न्यूज चैनल वालों को जैसे बेटा कहीं पे भी मीनिंग कोई भी अगर इवेंट हैपन होता है तो तभी ये वहां पे पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंच जाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने लोकल सोर्स, लोकल कोरस्पोंडेंट्स को डिफरेंट सिटीज के अंदर, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर अपॉइंट किया होता है। ठीक है जी। इन दिस मेथड द लोकल पर्सन और कोरस्पोंडेंट्स कलेक्ट द इंफॉर्मेशन इन देयर ओन वे and furnish the same to the investigator. मतलब in this method firstly investigator appoint the local person or correspondent in the different area, and after that that local person or correspondent collect the information in their own way and furnish or send the information to the investigator. That method is called the information getting from the local source or correspondents. अंडरस्टैंड बेटा, कहां पे ये मेथड यूज होता है, सुटेबिलिटी कहां पे है? जहां पे रेगुलर एंड कंटिन्यूस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। जब हमें बार बार बेटा पूरे हरियाणा की इंफॉर्मेशन चाहिए, हमें कंटिन्यूसली डाटा चाहिए होता है, तो हम हर रोज जो है बार बार जाके इन्वेस्टिगेटर वहां से डाटा नहीं लेता, वो वहां पे अपना कोई लोकल पर्सन या लोकल सोर्स या कोरस्पोंडेंट्स को अपॉइंट कर देता है। जहां पे एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन बड़ा होता है, जहां पे पर्सनली एक इन्वेस्टिगेटर सबके साथ जाके कांटेक्ट नहीं कर सकता, तो वहां पे हम इनडायरेक्ट या फिर जो है इंफॉर्मेशन फ्रॉम लोकल सोर्स मेथड को यूज कर सकते हैं। मोस्टली कहां पे यूज होता है? जर्नल्स के अंदर, मैगजीन्स के अंदर, रेडियो के अंदर, टीवी के अंदर, न्यूज चैनल्स के अंदर इस मेथड को यूज किया जाता है। जहां पे ज्यादा हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट नहीं होती बेटा, अगर ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो हमें क्या यूज करना चाहिए? डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यूज करना चाहिए, वो सबसे एक्यूरेट होता है। अंडरस्टैंड बेटा? नेक्स्ट, some merits and demerits of this method. First one is this method is very economical method. पूरे हरियाणा की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और सबके पास जाना भी नहीं पड़ेगा, एफर्ट्स भी नहीं लगेगा, टाइम भी नहीं लगेगा, और कंपैरेबल बेटा इसके अंदर मनी भी कम लगती है, क्योंकि बेटा पूरे हरियाणा के अंदर सबके पास पहुंचने में ज्यादा पैसा लग जाएगा, लोकल सोर्स को इतना रुपया नहीं देना पड़ेगा। वाइड कवरेज, बड़े एरिया को कवर किया जा सकता है, कॉन्टिन्यूटी रहती है, कॉन्टिन्यूसली हमें इंफॉर्मेशन मिलती रहती है, और स्पेशल पर्पज के लिए इसको यूज किया जा सकता है, लाइक दिस मेथड इज यूज्ड बाय सम न्यूज चैनल्स।
अंडरस्टैंड बेटा। द नेक्स्ट वन इज देयर आर सम डिमेरिट्स आल्सो, जैसे लॉस ऑफ ओरिजिनलिटी, क्योंकि डायरेक्टली इन्वेस्टिगेटर ने डाटा कलेक्ट नहीं किया है इसलिए ओरिजिनल डाटा नहीं हो सकता। यूनिफॉर्मिटी, एक जैसा डाटा यूज नहीं हो सकता, क्योंकि हर एक लोकल सोर्स जो है, हर एक लोकल कोरस्पोंडेंस जो है वो अलग अलग टाइप से डाटा कलेक्ट कर सकता है। कोई हो सकता है लोगों की एज पूछ ले, कोई हो सकता है लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में क्वेश्चन करता है, कोई कोरस्पोंडेंट्स या लोकल सोर्स हो सकता है वो लोगों की हाइट के बारे में क्वेश्चन करता है, कोई वेट के बारे में क्वेश्चन करता है। इसलिए बेटा यहाँ पे कई बार डाटा जो है उसके अंदर इक्वलनेस या फिर उसके अंदर आइडेंटिकलिटी जो है वो नहीं रहती, यूनिफॉर्म डाटा नहीं रहता। पर्सनल बाइस, बेटा हर एक इन्वेस्टिगेटर जो है, सॉरी हर एक लोकल सोर्स या कोरस्पोंडेंट्स जो है वो बाइस्ड हो सकता है, वो भेदभाव कर सकता है। इसलिए बेटा ये डाटा, ये मेथड जो है लेस एक्यूरेट है। ठीक है। और कलेक्शन के अंदर क्या हो सकती है, डिले हो सकती है, हो सकता है लोकल सोर्स जिसको हमने अपॉइंट किया था वो डाटा जो है टाइमली कलेक्ट ना कर पाए। अंडरस्टैंड बेटा। तो दीज आर सम मेरिट्स एंड डिमेरिट्स ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंट्स। तो बेटा ये तीन मेथड थे जो आपके आते हैं डायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू के अंदर। पर्सनल इंटरव्यू जो हमारा था उसके अंदर बेटा मेनली 3 मेथड्स जो हैं आपके आएंगे। मैं एक बार फिर से आपको वो स्लाइड्स दिखा देता हूं बेटा। पर्सनल इंटरव्यू, फर्स्ट मेथड जो है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन, सेकंड मेथड है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, और थर्ड मेथड है बेटा इंफॉर्मेशन फ्रॉम द लोकल सोर्स और कोरस्पोंडेंट्स। अंडरस्टैंड बेटा। तो आपको यहां तक पढ़ना है, इसको इतना आपको समझना है। नेक्स्ट बेटा हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा सेकंड मेथड रहेगा, द इंफॉर्मेशन थ्रू द क्वेश्चनेयर एंड शेड्यूल। दिस वी विल स्टडी या डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है बेटा। तो होप सो ये सब आपको समझ में आया होगा। हैव ए नाइस डे, बाय।